the big news coming in from the Congress quarters, and this is Radhika Khera. Remember, once a visible face defending the Congress party as a television panelist is now saying in tears that she's been facing harassment and abuse by senior Congress leaders and who were also against her for visiting the Ram Mandir. Just a day after she resigned from the Congress party and after, in fact, a long tenure in association with the Congress, Radhika Khera is now alleging that the party blocked her from participating in debates and conducting the media briefings. Radhika Khera has accused members of the party that they allegedly hurled filthy abuses at her in the Congress office, and even she's alleging she was confined, that she was physically abused and assaulted. She broke down while she was addressing the media, and she stated that leaders like Bhupesh Baghel, Sachin Pilot, Pawan Khera, who are senior leaders of the party, did not offer any assistance to her even after she repeatedly made requests. Former Congress members have also levelled serious charges. Remember Rohan Gupta, who had recently quit. There was also Gaurav Vallabh, who had recently quit, making very similar claims that whether it's about Sanatan Dharm or other issues that are being mentioned, that Congress is making comments that they do not agree with. Pramod Acharya also expressed displeasure over the party's rejection of the Ram Mandir invitation. अयोध्या में जाके हमने रामलला के दर्शन करे और बहुत जब वहाँ से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राम में हो चुकी थी और इतना ज़्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है। 6 दिन में लगातार राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जयराम रमेश जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के जो पीए पार्टी चलाते हैं, अलंकार सवाई जी, कौशल विद्यार्थी जी, संदीप सिंह जी, सबको लगातार कॉल करती रही, मैसेज किए, चिट्ठियां लिखी, खड़गे जी के ऑफिस में भेजा, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया, कहीं से कोई मदद नहीं आई। जयराम रमेश जी को भी मैंने रात को 1:30 बजे पूरी चीज लिख के भेजी, उन्होंने सुबह 7 बजे वो मैसेज पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने एक फोन कॉल नहीं किया। Former Congress netas who have left the Congress party recently have levelled similar accusations that Sanatan Dharm is being disrespected, specifically over Ram Mandir invitation. Listen into these previous reactions. मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? कांग्रेस पार्टी लीडर्स and the alliance partners of Congress party are making anti-Sanatan statements, and if Congress party is silent, then you are giving your silent approval to what they are saying. So that is not acceptable to me. Number 2, Prabhu Shri Ram's Pran Pratishtha invitation, your refusal to attend, I can only say this is not crime, this is sin. भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का अर्थ पाप है और पाप का फल हमारे धर्म में यही मिलता है, इसी जन्म में मिलता है, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। कोई भी पार्टी हो देश में, भारत देश में विचारधारा के 2 मुख्य बिंदु है, एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो। ये हर भारतीय के दिल में है। जब ये लगने लगा लास्ट 1.5 साल से कि दोनों मुद्दों पे जो पार्टी की मुख्य जो ओरिजिनल विचारधारा थी उससे बिल्कुल भटकने की बात चलेगी, लेफ्टिस्ट की तरफ चलेगा। हम भी प्रवक्ता थे, हम भी कई बार डिफेंड करते थे, आज मैं सैनिक था, करता था, पर मन से दुख होता था कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी। तो जब तक विरोधाभास रहेगा, विश्वसनीयता नहीं रहेगी। अयोध्या में जाके हमने रामलला के दर्शन करे और बहुत जब वहां से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राम में हो चुकी थी
और इतना ज़्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई, और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई, और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है। Now, clearly, the Bharatiya Janata Party netas are all guns blazing over this against the Congress Party, accusing the Grand Old Party that they are disrespecting women, they are disrespecting Sanatan Dharm. Listen in to how the BJP has jumped on this. कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने कांग्रेस से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है, और वहां की एक राम भक्त तो किसी भी दल की हो सकती है। वह अगर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आई थी, इस आधार पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनका अपमान किया गया। उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं, बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। जिस तरह से 2-3 दिनों से चल रहा था कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता और वो भी महिला प्रवक्ता और वो भी कांग्रेस भवन में इस तरह से अपमानित हुई अपने लोगों के द्वारा कि रो रो के बुरा हाल हो गया उसका। और ये नारी न्याय की लोग बात करने वाले लोग, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क रहता है। और इसी कारण से आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, एक छत्र शासन करने वाले लोग 55-60 साल तक आज ये लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। राधिका खेड़ा जी बहुत लंबे समय से मीडिया विभाग में अपनी सेवाएं देती हैं। उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार, अत्याचार किया गया, और जिस तरह से अगर उनका राम मंदिर में माथा टेकना ही गुनाह था, और उनको साथ जो हुआ उसका तो आपने बयान देखा भी होगा। अब इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी हो या फिर उनके एक और प्रवक्ता अंकिता दत्ता, इनके साथ और ऐसी अनेक कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं मिल पाया। प्रियंका जी कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन ना वो अपनी टिकट के लिए लड़ पाई, ना इन महिला प्रवक्ताओं के और मीडिया प्रबंधन वाले अपने कांग्रेस के नेत्रियों के लिए। तो इससे पता चलता कांग्रेस के अंदर अन्याय है, न्याय नहीं मिल रहा।